संसद बजट रो 5वां दिन आज केंद्र सरकार कया न्यूनतम समर्थन मूल्य माथे समिति बढ़ावा खातिर कटिबद्ध। राज्य सरकार लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशामाय कर्या नोवा संशोधन सार्वजनिक सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमारा आयोजन माय अब अधिकतम सीमा बढ़ाई। पुलिसिंग ने और मजबूत और तेज परिणाम देबाली व्यवस्था बढ़ावा खातिर प्रदेश में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम माथे करियो जारियो काम। जेल पुलिस मेडिकल प्रोसिक्यूशन सिस्टम होवेला एक ही प्लेटफॉर्म पर। विश्व कैंसर दिवस आज प्रदेश भर में आयोजित किया जा रहा है कई कार्यक्रम। जयपुर में ऑन्कोलॉजी मोबाइल वैन सु गांव गांव जार कैंसर सु संबंधित करी जा रही जांच। और मौसम विभाग रे मुजब प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर समाप्त। आगामी 2 दिन में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चूरू और सीकर में हल्को कोहरा रबारी संभावना। राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं था केशालू। अरब खबरा विगतवार। केंद्र सरकार कया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य माथे समिति बढ़ावा खातर व कटिबद्ध है। आज राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कया कि इन अनुमति लेबा खातर सरकार चुनाव आयोग ने लिखियो है, जिन माथे आयोग विधानसभा चुनाव रे पाछे समिति बढ़ावा निर्देश दिया है। संसद में सरकार कया कि वे सोशल मीडिया नियमा ने कड़े बढ़ावा खातर तैयार है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में कया कि सदन री सहमति होबा माथे सरकार इन दिशा में कदम उठा सके है। राज्यसभा में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कया कि देश $400 बिलियन निर्यात लक्ष्य माथे काम कर रियो है। वणा बताया कि अलग अलग देशा रे साथे व्यापार समझौता करया जा रहा है। सारे देश के ध्यान में है कि प्रधानमंत्री जी ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राकृतिक पद्धति खेती और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री जी की घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यवाही विभाग मंत्रालय में प्रचलित है। चूंकि चुनाव चल रहे थे, इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के सहमति के लिए लिखा था। चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्रवाई करें। This year India is going to see a record performance in exports. We have already up to 31st March crossed $334 billion of exports, which is higher than any full year ever in the past, and we are well on track to go to $400 billion export in the current year. My compliments to all the exporters, all the industry participants, including from the state of Rajasthan, who have contributed in a big way. I would urge all the states to support economic activity through exports, because truly export promotion is the way by which we'll be able to get more and more jobs in the system, more and more economic activity. I think it is the collective effort of the center and the states, and we are finding very good traction across the country working together. Thank you. Will you have a centralized control room which can take effective action and also to block the misuse of such apps if required? Because we have referred about the freedom of expression, freedom of speech. Article 19 is very clear. It's not unrestricted. There are exceptions for the commercial media, and there are question, Mani Anand going back. Question. I've asked the question. Yes, please. Honorable Chairman, sir, if the House has consensus, we are willing to provide even more stricter social media rules. Definitely, and I personally believe that for the protection of our citizens, we must make the rules stricter. At this point of time, we are working within the constitutional framework. So your point, the role of state and the role of center, both have to be seen in the perspective. The law enforcement agencies of the state governments, they are taking the action based on the information which goes either from certain or from MIT or any other agency. There is a framework created for any cyber crime which happens all over the country.
it can be reported over a central portal and it goes to the relevant law enforcement agency. But I agree with you that we have to come forward as a society and create much more accountability for the social media. राज्य विधानसभा 9 फरवरी से शुरू होवेला 7वां सत्र लहर तैयारियां शुरू होगी है। काल विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा अधिकारियारी बैठक लेर व्यवस्थावारी समीक्षा करी। बैठक माय विधानसभा भवन माय संचालित चिकित्सालय माय पर्याप्त स्टाफ दवाइयां और जांच उपकरण उपलब्ध कराबा समेत विभिन्न व्यवस्थावां करबारा निर्देश दिया। इनके साथ ही सत्र के दौरान साफ सफाई और कोविड गाइडलाइन रिपालनारा भी निर्देश दिया। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल जाट बजट ने लेर राज्यसभा माथे निशानो साध्यो है। शर्माए कहा कि राज्य सरकार धरातल माथे काम करबा माथे ध्यान दे। वड़ा कहा कि लाडला 3 बजटारी प्रगति रिपोर्ट देखे तो 50% काम अभी भी अधूरा है। राजस्थान की सरकार चौथा बजट पेश करने के लिए जा रही है। इससे पहले 3 बजट राजस्थान की सरकार पेश कर चुकी है, लेकिन इन 3 बजटों की अगर प्रगति रिपोर्ट हम देखें तो 50% काम भी ऐसे नहीं है कि जिन कामों का वादा जो सरकार ने किया था वो वादा पूरा करने का काम किया हो। आज भी राजस्थान के अंदर इनके तत्कालीन सार्वजनिक मंत्री इन्हें घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के हम विकास पथ बनाने का काम करेंगे और राजस्थान के अंदर 10,000 विकास पथ बनाने का काम करेंगे। विधानसभा के अंदर जब क्वेश्चन के माध्यम से हमने उत्तर प्राप्त किया तो राजस्थान सरकार ने कहा कि हमने तो अभी 183 विकास पथ बनाने का काम ही किया है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई थी, उस योजना के अंदर लाखों लोगों को लाभान्वित किया जा रहा था, लेकिन अब उस योजना का भी नाम परिवर्तित करके और ऊंट के मुंह में जीरे के समान राशि वे करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। और इसी तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इन्होंने घोषणा इस बात की थी कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर के ऊपर हम नंदीशालाएं खोलने का काम करेंगे। आज भी कई वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर नंदीशाला खोलने में भी सरकार विफल रही है। राज्य सरकार लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशा माय नवा संशोधन जारी करिया है। इन तहत किणी तरह सार्वजनिक सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमारा आयोजन माय अब अधिकतम 250 लोगों ने शामिल होबारी अनुमति वहली। प्रदेश में सगला धार्मिक स्थला ने वड़ारा समयानुसार खोलिया जाबारी अनुमति दी गई है। इनके अतिरिक्त प्रदेश भर में लग्या गया रात्रिकालीन कर्फ्यू ने समाप्त कर दिया गया है। कोरोना से बचाव खातिर आमजन में जागृति लाव्या खातिर जठे एक और केंद्रीय और राज्य सरकार प्रयास कर रही है, वठे दूसरी ओर जोधपुर युवा भी प्रयास कर रहा है। एक निजी संस्थान कानीसू कच्ची बस्ती और अन्य क्षेत्र में 4 लोग ने मास्क पहनबा, सैनिटाइज करबा और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आज हम सभी युवा आज एक शपथ लेते हैं कि हम सरकारी गाइडलाइन की पालना करेंगे और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके हर सहयोग में उनका साथ निभाएंगे। सर, हमने कोविड जागरूकता के लिए अस्पतालों के अंदर निःशुल्क मास्क का वितरण किया, ऑक्सीमीटर हमने दिए, उसके अलावा थर्मल स्कैनर हमने दिए और ये हमारे प्रतापनगर राज्य के सैटेलाइट का मैं RMRS मेंबर भी हूँ और आए दिन हम कुछ न कुछ भामाशाओं के द्वारा सहयोग करते हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कोविड की उपलब्ध करवाते हैं। ग्राउंड लेवल पर लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों को समझाया गया है। बैनर लगा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा के भाई सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे। आप अगर ऐसी पालना नहीं करेंगे तो इससे उल्टा हमारा ही नुकसान है, तो समस्या हमको ही होने वाली है। तो उनको इस बारे में हमने समझाया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन की पालना करें जिससे हमको कोई तकलीफ ना हो और आपको भी कोई तकलीफ ना हो। घर घर जाके जो भी है लोगों को कहा भाई इससे डरो मत, ये इसकी जांच होने जो जरूरी है। एक बार जिसको अस्थमेटिक बीमारी है, शुगर है, 60 साल जो ऊपर सीनियर सिटीजन है, उनको अवश्य ये जांच करानी चाहिए। पुलिसिंग ने और मजबूत और तेज परिणाम दिवाली व्यवस्था बढ़ावा खातर केंद्र सरकार सहयोग से प्रदेश में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अर्थात ICJS माथे काम करियो जा रही है। इनके माध्यम से जेल, पुलिस, मेडिकल प्रोसिक्यूशन सिस्टम ने एक ही प्लेटफॉर्म माथे लाबारो काम करियो जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सुनील दत्त दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि इन सिस्टम के माध्यम से जेल, पुलिस, मेडिकल प्रोसिक्यूशन जैसा सगला पिलर्स रो एक डेटा एक जगह उपलब्ध वहली, जिनसु पुलिसिंग रा काम अमाए तेजी आबेली। बेसिकली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले टाइम में क्राइम
और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जेल, प्रोसिक्यूशन, मेडिकल, इन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाएगा। और इसके अलग अलग पिलर्स हैं। एक पिलर उसमें पुलिस है, दूसरा पिलर जुडिशरी है, तीसरा पिलर उसमें जेल है, चौथा पिलर उसमें प्रोसिक्यूशन या मेडिकल है। आइडिया इसमें ये है कि ये सारे पिलर पहले तो कंप्यूटराइज हो जाए, उनका जो डाटा है वो सारा ऑनलाइन हो जाए। फिर दूसरा ये है कि ये सारे पिलर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ताकि जुडिशरी को पुलिस के बारे में कोई सूचना चाहिए या पुलिस को जुडिशरी से या जेल से या प्रोसिक्यूशन से कोई सूचना चाहिए तो बार बार लेटर लिखना, जिसमें कई दिन कई महीने लग जाते हैं, वो ना लगे। ये सूचना हाथों हाथ एक क्लिक ऑफ द बटन से वो मिल जाएगी। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। आज विश्व कैंसर दिवस है। प्रदेश भर में कैंसर खातर लोगा में जागरूकता लाव्या खातर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर्या जा रहा है। स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर में कैंसर जागरूकता लहर राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजन कर्यो गयो। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि रूप में स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा कैंसर सफल निदान और अधिक सु अधिक जानकारी प्रदान कर कैंसर सु बचाव माथे जोर दिया। उनको यही संदेश है कि इसका प्रारंभिक तौर पर स्क्रीनिंग करके और प्रारंभिक तौर पर पता लगे तो निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। उसी के लिए अभी हमने हर पंचायत लेवल पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के कैंप हमने आयोजित किए हर ग्राम पंचायत पर, और वहाँ पर इन सब चीज़ों की जांच के लिए तो कोई सी भी गंभीर बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, उनको वहाँ पर जांच करके उनको आगे रेफ़र करने के लिए कहा है। कभी लोगों को पता ही नहीं चलता मेरे कोई गंभीर बीमारी होगी, मेरे कैंसर हो गया, कोई दूसरी बीमारी होगी, फर्स्ट स्टेज पर पता नहीं लग पाता है। इसीलिए ये कैंपों का आयोजन किया गया है। हम कैंसर के विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं उनकी विशेष ट्रेनिंग कोशिश करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर का एक उनका दल हो, वहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग करें, विशेषज्ञ हो, उनकी ट्रेनिंग करा के उसकी भी हम आगे व्यवस्था करेंगे, लोगों को इसका प्रारंभिक तौर पर पता चले। समाचार में वक्त है एक विराम रो। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार में आपका फिर स्वागत है। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर कनीसु ऑन्कोलॉजी मोबाइल वैन सु गांव जार कैंसर सु संबंधित जांच करी जारी है। SMS मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी बताया कि ऑन्कोलॉजी मोबाइल वैन सगली सुविधावां सु युक्त है। इन वैन में डिजिटल एंडोस्कोपी, डिजिटल मेमोग्राफी और डिजिटल एक्सरे आदि री जांच तुरंत मिल जावे है, जिनसु कैंसर रोगिया री जल्द पहचान कर टैम माथे वड़ारो उपचार करियो जा सके है। अर्बन एरिया में तो लोग हॉस्पिटल को एसेस कर लेते हैं, बट रूरल एरिया में जो गायनी कैंसर है, ब्रेस्ट और ओवेरीज का, जो मुंह का कैंसर है और लंग्स का कैंसर है, लोग को बेस्ट अर्ली डायग्नोसिस की फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए हमने एक प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी वैन तैयार की है। ये प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी वैन कैन गो टू मोस्ट रिमोटेस्ट एरिया, गांव में जाएगी और ढानी में जाएगी, वहाँ पे अपना कैंप करेगी। हमारे एक्सपर्ट इस बस में साथ जाएंगे। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी वैन टेलीमेडिसिन के द्वारा हमारे बेस हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, तो टेस्ट तुरंत करके यहाँ के एक्सपर्ट्स उसके बारे में ओपिनियन दे सकते हैं। टेलीमेडिसिन के द्वारा वर्ल्ड के किसी भी कोने से हम इस प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी वैन को कनेक्ट कर सकते हैं। लंग कैंसर है, उसके लिए चेस्ट एक्सरे है जो कि लंग कैंसर को डिटेक्ट कर सकती है, और जो मुंह का कैंसर है उसके लिए एक एंडोस्कोप है जिसको कि हॉपकिंस भी बोलते हैं, तो उस एंडोस्कोप से मुंह के कैंसर की जल्दी जांच और पहचान की जा सकती है। इसी तरह फीमेल्स में जो है ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है,
उसके लिए मेमोग्राफी एक मशीन है, जो कि डिजिटल मेमोग्राफी हमने जो कि एडवांस मशीन है वो लगाई है। इसमें ना सिर्फ कैंसर को पहचानती है बल्कि कैंसर बनने से पहले भी ये उसको पहचान सकती है। ऐसे ही जो दूसरी मशीन है वो है कॉल्पोस्कोप, डिजिटल कॉल्पोस्कोप। ये फीमेल में जो दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर, उसको पहचानने के लिए इसमें एक डिजिटल कॉल्पोस्कोप मशीन लगाई गई है। इस तरह से चारों मशीनें मिलके करीब 50% फीमेल्स में और 37% मेल्स में कैंसर को डिटेक्ट कर सकती है समय से पहले। इस कमरे में हम सर्वाइकल कैंसर की जांच करते हैं, जो कि गर्भाशय की योनि के मुंह का कैंसर होता है। तो यहाँ हम कॉल्पोस्कोपी के द्वारा सर्वाइकल कैंसर की जांच करते हैं। इसकी रिपोर्ट हम 10-15 मिनट में दे देते हैं। हमें बस जो सर्विक्स है उसकी इसमें पिक्चर लेनी होती है, जिससे हमें अंदाज़ा लग पाता है कि कहीं वहाँ पे कैंसर की कोई गांठ तो नहीं है। ये हमारा हॉपकिंस एग्जामिनेशन कहलाता है, जो कि स्क्रीन पे यहाँ पे आपको गले में जो भी अगर कोई गांठ है या कोई भी लीजन है तो हम उसको देख सकते हैं और उसको डिटेक्ट कर सकते हैं जल्दी, और ये बायोप्सी भी हम बाद में उसको प्लान कर सकते हैं। पेशेंट्स को यहाँ पे हम लोग हेड एंड नेक के लिए एग्जामिन करते हैं, जिसमें गले का एग्जामिनेशन, मुंह का एग्जामिनेशन और पूरे हेड एंड नेक का एग्जामिनेशन संभव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नीट पीजी परीक्षा 2022 ने 608 सप्ताह खातिर टाल दियो है। समीक्षा रे पाछे नई तारीखानी घोषणा करी जावेली। गौरतलब है कि परीक्षा 12 मार्च ने आयोजित करी जानी ही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा 2022 को 6 से 8 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से पहले ये घोषणा की गई। नीट पीजी अब 12 मार्च को आयोजित नहीं होगी। नई तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाने के लिए भी कहा है। नीट पीजी उम्मीदवारों का कहना है कि साल 2021 में कोविड ड्यूटी में तैनात थे, जिसकी वजह से उनकी इंटर्नशिप को स्थगित कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नई तिथि की घोषणा समीक्षा के बाद की जाएगी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तीरा 810वां सालाना उर्स रे मौके माथे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कनीसू नायब मुनव्वर खान चादर पेश करी रही। वड़ा रक्षा मंत्री कानीसू भेजिया गया संदेश ने भी पढ़ सुनाया। वड़ा देश और विदेश सू आबाला श्रद्धालुओं ने शुभकामनावा थका कोरोना सू बचाव खातिर किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसू काल सालाना उर्स रे मौके पर चादर पेश करी जावेली। मुख्यमंत्री ख्वाजा साहब रा दर माथे आबाला तमाम जायरीन और प्रदेशवासियों ने उर्स री मुबारकबाद दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से बातचीत करता थका गया। पंजाब विधानसभा चुनाव में एक नयो इतिहास लिखिया जावेला। किसान आंदोलन रा मुद्दा माथे वड़ा कया कि प्रधानमंत्री जिन तरह सु कृषि कानूना ने वापस लियो है, उन तरह सु यो मुद्दो अब समाप्त हो गयो है। केंद्रीय मंत्री सर्किट हाउस पुग्या जठे भाजपा कार्यकर्तावा कानीसू वड़ा रो स्वागत करियो गयो। इन रे पाछे मंत्री पंजाब खातर रवाना वह गया। देखिए, मैं पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा समय से अधिकांश समय पंजाब में रहा हूँ और पंजाब भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, बेशक भारतीय जनता पार्टी के लिए नई शुरुआत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन पिछले इतने वर्षों से जिस तरह से हर एक जिले में, हर एक मंडल में और अधिकांश बूथ तक काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस नई भूमिका में अत्यंत उत्साहित है, आशान्वित है। और मैं एक बात विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, मैं सीटों के आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाना चाहता, लेकिन अब की बार का चुनाव जो है 2022 का चुनाव पंजाब के राजनीतिक इतिहास में एक नए नैरेटिव के रूप में लिखा जाएगा, एक ऐतिहासिक बिंदु। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बूंदी में स्वास्थ्य विभाग कानी पीसीपीएनडीटी और आईईसी सेल कानी सो इनरो व्यापक प्रचार प्रसार करियो जा रही है। इन मुहिम के तहत स्वास्थ्य भवन सु बेटी रथ वाहन ने हरी झंडी दिखा रवाना करियो गयो। इन साथ ही पीसीपीएनडीटी एक्ट री जानकारी देबाला पैम्पलेट रो भी विमोचन करियो गयो। तो इको परिणाम तो नहीं याद है कोई ने है ना, लड़कियां नहीं पढ़ो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जागरूकता रथ और कला जत्था रवाना किया गया है। इसमें माइकिंग के जरिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। 5 ब्लॉक में 5 जगह यह जत्था 5 राजस्व ग्राम में जाएगा
वहाँ लोगों को जागरूक करेगा। इसके साथ ही बूंदी शहर में भी 2 दिवस तक जगह जगह जाकर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में जो अभियान सरकार ने चला रखियो है, तो इनमें लोगों के तय सबके तय संदेश देना चाहिए कि बेटी बचानी चाहिए और बेटी पढ़ानी चाहिए। और इसके अलावा आप से जो मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर कोई भ्रूण हत्या कर तो पाए गयो और कोई ने सूचना दे दी, गुप्त रखी जाओगी कि सूचना के लिए 3 लाख को इनाम भी दिया जाओगे। बेटी बचाओ का जो चल रहा है, इसमें आज चिकित्सा विभाग द्वारा रथ रवाना किया जा रहा है। इसको आप समझें कि बेटी में और बेटे में कोई भेद नहीं है और इसकी तुलना एक ही की जाए, क्योंकि बेटे और बेटा एक समान रखें। कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग रविंद्र मंच जयपुरा संयुक्त तत्वाधान में आजादी रा अमृत महोत्सव कार्यक्रम ने लहर काल बसंत उत्सव 2022 रो आयोजन रविंद्र मंच माथे कर्यो जावेला। रविंद्र मंच रा प्रबंधक सैयद शिराज अली जैदी बताए कि कार्यक्रम रो उद्देश्य भारतीय कला और संस्कृति रो प्रचार प्रसार करनो है, साथ ही कलाकारा ने मंच मुहैया करवानो है। बसंत उत्सव में कवि सम्मेलन रो भी आयोजन करियो जारियो है। इनमें देश और प्रदेश रा कवियां कानी सु काव्य पाठ करियो जावेला। बसंत उत्सव 2022 के नाम से बसंत पंचमी के अवसर पर हम एक कवि सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें जयपुर के और कुछ बाहर के प्रोमिनेंट और ख्याति प्राप्त जो कवि और शायर हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। इसमें मुख्य रूप से फारूक इंजीनियर साहब, कृष्ण कल्पित जी, अखिलेश तिवारी जी, विजय मिश्रा, दानिश शकीलुद्दीन शकील, जीनत कैफ़ी, अज़म शाकरी, टीकम चंद जी बोरा, इन समेत तो कुछ बड़े नाम इसमें शामिल हैं। कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए ये जो एंट्री है वो पूर्णतः निःशुल्क रहेगी और सबसे निवेदन है कि कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए अधिक संख्या में पधारें। वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण री दिशा में केंद्रीय और राज्य सरकार जठे एक और कटिबद्ध है। वने इन दिशा में हनुमानगढ़ जिला रा पीलीबंगा कस्बा रा गांव लखासर रा रेबैला अनिल बिश्नोई एक अनोखी मिसाल पेश करी है। वड़ा खेती रे साथे वन्यजीव और पर्यावरण री दिशा में उत्कृष्ट काम कर जिला ने गौरवान्वित करिया है। पेश है माका हनुमानगढ़ संवाददाता हेतुराम इंदेलिया री खास रिपोर्ट। आज 35 साल से यहाँ इन हिरणों का रेस्क्यू सेंटर चला रहा है। पहले एक हिरण से रेस्क्यू सेंटर चला था, घायल हिरण को यहाँ लेके आए थे, उसके उपचार किया, वो ठीक हो गया। उसके बाद धीरे धीरे कभी 5 कभी 7, आज 35 साल से सारे समाज का सहयोग है। आज हमारे पास लगभग 100 हिरण है। इन हिरणों के लिए पहले हमारे पास जगह छोड़ी थी, अब हमने ये थोड़ी जगह 2 बीघे और बढ़ाई है। जो भी हिरण ठीक होता है कुछ या कोई जैसे अब लोगों ने कुछ अपने धन के लालच के अंदर खेतों के अंदर करंट की तारबंदी कर रखी है, उसका भी बेचारा इन वन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये वहाँ घायल हो जाते हैं, लोग यहाँ छोड़ने के लिए आते हैं, इनको हम उपचार कराते हैं। काले हिरणों और चिंकारा हिरणों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लगा हुआ हूँ दिन रात। इन्हीं की सुरक्षा और संरक्षण की हमेशा मेरे मन में रहता है कि किस तरह से अपने क्षेत्र में नहीं पूरे इलाके में हिरणों की संख्या बढ़े। जहाँ कहीं भी हिरण का शिकार होता है तुरंत पहुँचने का कोशिश करता हूँ, घायल हिरणों का उपचार करवाता हूँ और जो अनाथ बच्चे मिलते हैं, जैसे कुत्ते के काटने से मादा हिरण की मौत होने पर अनाथ हिरण मिल जाते हैं, तो उन अनाथ हिरणों को भी अपने घर पर लाकर उपचार करता हूँ और फिर डावला जैसे धार्मिक स्थलों पर रेस्क्यू सेंटरों पर लाके छोड़ देता हूँ और यहाँ पर स्वस्थ होने के बाद में खेतों में विचरण के लिए छोड़ देते हैं। प्रदेश में बीतिया 24 घंटा में प्रदेश रा उत्तरी जिला रा कुछ इलाका में हल्की बारिश के साथ बूंदाबांदी दर्ज करी गई है। मौसम विभाग जयपुरा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर पूरी तरह से समाप्त हो चुक्यो है। प्रदेश में अधिकतर जिला में मौसम शुष्क रहेलो, साथ ही आगामी 2 दिना में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर में सुबह रे टाइम हल्को कोहरो रहबारी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ जो है अब हमारे क्षेत्र से पास हो चुका है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि न्यूनतम तापमान में जो है गिरावट दर्ज की गई है। उसी के साथ साथ अब जैसे मौसम खुल गया है तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है उसमें आपको थोड़ी बढ़ोतरी दिखेगी। लेकिन आने वाले 2 दिन जो राज्य के उत्तरी जिले हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पूर्वी राजस्थान की बात करें
तो सीकर है, झुंझुनू है, पिलानी वाला रीजन है, अलवर भरतपुर है, यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की धुंध के साथ एक दो जगह घना कोहरा भी मिलने की संभावना है। और बात करें बारिश की, तो आने वाले 5 दिनों में जो मौसम है वो मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। दिनांक 8 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिमी जिलों को में सक्रिय होने की संभावना है। अरब खास खबरा एकर फेरू। संसद बजट रो 5वां दिन आज केंद्र सरकार कया न्यूनतम समर्थन मूल्य माथे समिति बढ़ावा खातिर कटिबद्ध। राज्य सरकार लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशा माय कर्या नवा संशोधन सार्वजनिक सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमारा आयोजन माय अब अधिकतम सीमा बढ़ाई। पुलिसिंग ने और मजबूत और तेज परिणाम देवाली व्यवस्था बढ़ावा खातिर प्रदेश में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम माथे करियो जारी हो है काम। जेल, पुलिस, मेडिकल, प्रोसिक्यूशन सिस्टम होवेला एक ही प्लेटफॉर्म पर। विश्व कैंसर दिवस आज प्रदेश भर में आयोजित करया जा रहा है कई कार्यक्रम। जयपुर में ऑन्कोलॉजी मोबाइल वैन सु गांव जार कैंसर से संबंधित करी जारी जांच। और मौसम विभाग रे मुजब प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर समाप्त। आगामी 2 दिना में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर में हल्को कोहरा रहबारी संभावना। अरब खबरा पूरी हुई सा। नमस्कार।